हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच यूजुअली कम इन योर स्पॉटिंग ऑफ एरर्स टॉपिक, specifically if you're going for the different defense competitive exams like NDA, CDS, AFCAT, territorial army exams and so on. तो जिन क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार ये आया है इन एग्जाम्स में और आगे भी आने का चांस जो है इनका काफी हाई है. In this session, we are not only going to look into these questions, we are going to solve them together, and also I will tell you the explanation, the rules behind the important questions and why you have got that answer. So let us start without much further ado by first reading the directions ताकि आपको पता चल जाए that how to solve question from spotting error topic. Basically यहाँ पे आपको एक sentence मिलता है जिसको 3 parts में divide किया जाता है, A, B और C. आपको बताना पड़ता है कौन से part में error है. However, you need not say क्या error है. You just have to identify that okay, this part has the error. So जिस भी part में error है, मान लीजिए B part में आपको लग रहा है error है sentence का, तो आपका आंसर हो जाएगा option B. अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देन योर आंसर इन दैट केस विल बी ऑप्शन डी, जिसका मतलब होगा नो एरर. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग क्वेश्चन वन बाय वन एंड यू विल नो हाउ टू सॉल्व देम. देन फर्स्ट क्वेश्चन, डोंट थिंक यू कैन से अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड हिज बैक एंड नॉट फाउंड आउट. ये सेंटेंस को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा पढ़ना है. डू नॉट ट्राई टू फाइंड द एरर बाय रीडिंग देम इन पार्ट्स. रीड द सेंटेंस इन होल. अगर जरूरत हो तो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, ताकि आपको समझ में आ जाए what the sentence is actually trying to mean. Second thing that you need to do is trust your ears. Your ears will tell you after you have repeated the sentence a couple of times where or in which part the error can be. For example, अगर आप इस sentence को बार बार repeat करते हो, आपको पार्ट सी में आके लगेगा कि यहाँ पे कुछ एरर है या हो सकता है. अगर आपको ऐसा लगे then without any thought just write down that answer because 99% केस में your ears are absolutely right. They give you the right answer. तो इस पार्ट में भी, इस क्वेश्चन में भी एरर पार्ट सी में है, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ना where is the problem? सो एंड के बाद यहाँ पे हमने कोई भी वर्ब यूज नहीं किया है, बट वी हैव टू यूज द वर्ब, क्योंकि जो सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हमें वर्ब यूज करना होता है. सो इफ यू रीड द सेंटेंस, डोंट थिंक यू कैन से pleasant unpleasant things about someone behind his back and are not found out. ऐसा होगा. यहाँ पे वर्ब जो है वो मिसिंग था, यहाँ पे हो जाएगा are not found out. You are not found out. So option C will be the right answer. are missing था यहाँ पे. Next question. The Americans speak different from us though our grammar is the same. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर हो जाएगा पार्ट बी, सो हमारा आंसर भी ऑप्शन बी होगा. Now where is the error? यूजुअली आपको पता है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वी यूज एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे स्पीक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है विच इज डिफरेंट, विच इज रॉन्ग अगेन. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द अमेरिकन स्पीक डिफरेंट फ्रॉम अस, वी हैव टू से the Americans speak differently from us. So you have to make this adjective different into an adverb by adding ly to it. Differently. Okay, तो यहाँ पे ये adverb differently होगा, which is not used here. It is used as an adjective, so it's wrong. So option B is the right answer. Next question. This is an instance of the blind leading the blinds. Now again, even if your ears have not told you the error, you already know because the rule is very easy. The error is in part C, so C is our answer in this case. Now where is the error? The blind leading the blinds. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अंधों को लीड किया जा रहा है, बट जब आप अंधों को एज अ क्लास, एज अ ग्रुप समझाते हो, तो यू डू नॉट से द ब्लाइंड्स, you say the blind, right? We do not use the plural form or we do not use s or es with it, right? So the blind will be the correct word here. अगर आप blinds use करते हो इसका मतलब दूसरा हो जाता है. For window we use curtains, so that is blinds, okay? But here it is andho, so the blind, okay? So C will be the right answer. जब भी आपको एक adjective मिलता है and you use the adjective to denote a particular class like rich, पुअर, तो हम कभी भी इनके साथ एस या es ऐड नहीं करते. तो यू वॉन्ट से द रिचेस, द पुअर्स, you have to just add the before it and use it like this: the rich, the poor, which will mean the rich class, the poor class. Okay, similarly here also blind is an adjective and we are trying to denote a class of blind people here. So instead of saying the blinds, we are going to use the blind.
Next question. He took to drink to lessen his mental worries. Again, if you read the sentence again and again, your ears will tell you part A में error है and it is right. Option A is the right answer. The A part में जरूर error है. He took to drink. This is wrong. He took to drinking. Okay. So basically, when you take to something, that means you get addicted to that thing. Okay. So take to is a phrasal verb here, which means get addicted to. सो इसके बाद जो है हमेशा हम नाउन यूज करते हैं या फिर अगर आपको कोई वर्ब यूज करना है वो आईएनजी फॉर्म में यूज करना होगा. सो यहाँ पे जो है ड्रिंकिंग, टू ड्रिंक इज रॉन्ग. यहाँ पे हमें वर्ब ड्रिंक को आईएनजी फॉर्म में यूज करना है, टुक टू ड्रिंकिंग. ओके. Next question. My father could lead a full and happy life without spending lot of money. This is easy. So instead of saying lot of money, we can either say a lot of money or you can say lots of money. But you cannot say lot of money. Okay. तो either a या s add आपको करना होगा इसके साथ. तो C part में error था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन C. Next, All India Radio broadcasted a very good program this morning. At first go, when you read the sentence, you will find no error. So you'll be tempted to answer it as D, but I'll tell you D is not the answer. There is definitely an error here, and the error is with part A. कहाँ पे error है? Usage of the word broadcasted is wrong. Broadcast एक ऐसा word है, एक ऐसा verb है जो irregular verb के कैटेगरी में आता है. इसका मतलब है कि अगर आप इस वर्ड ब्रॉडकास्ट को पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V2 या V3 में कन्वर्ट करना चाहते हो, यू आर नॉट गोइंग टू एड ed टू इट. यू आर गोइंग टू कीप इट अनचेंज्ड. यानी एक ऐसा वर्ड है जो कि V1 यानी मेन वर्ब, V2 यानी पास्ट फॉर्म और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सेम फॉर्म में रहता है, ब्रॉडकास्ट. So here, instead of using broadcasted, you're just going to say All India Radio broadcast a very good program this morning. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A. Next one. There were so much cattle on the road that it was difficult to drive safely. This is an easy error here. Cattle को हम गिन सकते हैं. It's a countable noun. Okay, so you cannot use much with countable noun. Much हमेशा हम लोग uncountable noun के साथ use करते हैं. So usage of much is wrong here. It should be so many cattle. We use many with countable nouns. So यहाँ पे आंसर आपका A हो जाएगा. Next question. What could have provoked him to behave in such a rude manner at dinner last night? Now again at first वो आपको लगेगा sentence absolutely correct है, कोई error नहीं है, तो D आंसर होगा. Again D is not our answer here. Answer is in part A. Part A में error जरूर है. कहाँ पे error है? अगर आप पूरा sentence पढ़ो, यहाँ पे कुछ ऐसे घटना के बारे में बात हो रही है जो कि एक definite time in the past में हुआ है, which is last night. Now, whenever you have definite time in the past, you do not use past perfect or any kind of perfect tense. You use simple past tense. लेकिन यहाँ पे have provoked, could have provoked use किया गया है, which is wrong. So, it should be suffice to say what provoked him to behave in such a rude manner at dinner last night. Okay? तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A. Next. They were rich zamindars in the 30s, but now they had fallen on the evil days and have lost much of their property. थोड़ा लंबा सेंटेंस है, पर अगर आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा एरर कहाँ पे है. एरर पार्ट सी में है, क्योंकि अगर आप देखो कि पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है. were पास्ट टेंस, had fallen पास्ट परफेक्ट, लेकिन सी पार्ट में have lost प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पे गलत है. इट शुड बी had lost much of their property. So C is the answer here. Next one. The foreign ambassador was noted for both his charming manners as well as his wide knowledge of languages. तो यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में बात हो रही है, चार्मिंग मैनर्स की भी उनकी और उनके लैंग्वेजेस के नॉलेज के बारे में. और आपको पता है बोथ के साथ हम एज वेल एज कभी यूज नहीं करते, वी यूज एंड विथ इट. तो यहाँ पे एज वेल एज का यूजेज गलत है. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पार्ट सी में एज वेल एज का यूज हुआ है. Next, the news of the disturbance was telecasted the same evening. अब आपको पता चली गया है कहाँ पे एरर है. Just like broadcast, telecast is another word which is irregular verb, जिसका form change नहीं होता, even if you want to change it to V2 or V3 form. So instead of saying telecasted, we have to say was telecast the same evening. So B part में error था, हमारा आंसर हो जाएगा option B.
Next question. Everyone visiting the house asked the young girl, how could she kill the wolf single-handed and without a weapon? Now, most of the candidates will answer it as D. Okay, because there is no error. Because उनको लगता है सेंटेंस में एरर नहीं है. बट आई टेल यू, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. बहुत बार ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी आएगा. एंड दिस इज वन सच रूल या सेंटेंस जिसमें लोग जो है इनको स्किप कर जाता है एरर को. नो वेयर इज द एरर? हाउ कुड शी किल द वुल्फ? हम ये फॉर्मेट क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, हाउ कुड शी डू दैट. लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज करते हो, वी यूज एसवीओ फॉर्मेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट. उस केस में हम ऐसे यूज नहीं करेंगे सेंटेंस को. वी विल से हाउ शी कुड किल द वुल्फ. यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को सेंटेंस में बदलाव किया गया है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ कुड शी, इट शुड बी हाउ शी कुड किल द वुल्फ. ओके, सो पार्ट बी में एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट. While walking slowly in the park on a quiet summer afternoon, a mad dog suddenly attacked him from behind. Now, अगर आप ये सेंटेंस को पढ़ोगे, at first you'll find no error. लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे in whatever language you're comfortable in, और आपको मीनिंग ढूंढना होगा, तो ऐसा कुछ लगेगा कि वो जो मैड डॉग थे, वो पार्क में स्लोली वॉक कर रहा था, पर एक्चुअली वो नहीं कर रहा था. कर रहा था वो आदमी जिसको उसने अटैक किया. तो यहाँ पे द करेक्ट सब्जेक्ट, द ट्रू सब्जेक्ट इज मिसिंग. और जब भी ऐसा ट्रू सब्जेक्ट मिसिंग होता है, इस पर्टिकुलर फ्रेज के बाद में तुरंत जो सब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रू सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं. सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट हियर टू मीन अदरवाइज. तो यहाँ पे कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? While he was walking slowly in the park on a quiet summer afternoon, a mad dog suddenly attacked him from behind. तो हमें यहाँ पे true subject को introduce करना ही पड़ेगा, नहीं तो it would mean a mad dog as the true subject here, which will be wrong. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पार्ट ए में एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Since the attachment of air-conditioned sleeping cars to all important trains, traveling became very pleasant, especially during the summer season. Now already ये recent एक चीज हुआ है, एयर कंडीशन स्लीपिंग कार्स को इंपॉर्टेंट ट्रेन में अटैच किया गया है. तो ये घटना के बाद अब ट्रैवलिंग ज्यादा प्लेजेंट हो गया है. So instead of saying the traveling became very pleasant, we are not going to use it in past tense. We have to use it in present perfect tense. हो गया है, already हो चुका है. So we have to use it as traveling has become very pleasant. So B part में error था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन B. Next, it is the newspapers that exposes us to the widest range of human experiences and behavior. Again, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको लगेगा एरर नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ पे सेंटेंस, बट सेंटेंस सही नहीं है. नो एरर कभी भी आंसर नहीं होगा ऐसे सेंटेंस के लिए. ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा. आपको लग रहा है इट इज द न्यूज पेपर्स दैट एक्सपोजेज अस. मैं यहाँ पे बता देती हूँ कहाँ पे एरर है. एरर इज विद द यूज ऑफ द वर्ब एक्सपोजेस. ये सिंगुलर वर्ब एक्सपोजेस यूज हुआ है, जो कि गलत है. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सब्जेक्ट इट है ना. नो, इट इज टेम्पररी सब्जेक्ट. ट्रू सब्जेक्ट इज नॉट इट, इट इज द न्यूज़पेपर्स व्हिच इज प्लूरल. तो यहाँ पे हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट एक्सपोजेस, वी हैव टू से दैट एक्सपोज अस. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट. The method suggested in the lecture enables a student to learn more quickly and to have remembered for a longer period of time. अगर आप इस सेंटेंस को रिपीट करोगे, your ears will tell you that C पार्ट में कुछ एरर है. And you are right, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि C पार्ट में जरूर एरर है. C ही हमारा आंसर है. So यहाँ पे आप देख सकते हैं to learn, सीखना. लेकिन यहाँ पे and के बाद जो जुड़ रहा है, इसके बाद and के साथ टू हैव रिमेंबर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में है. आपको पता है जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो डिफरेंट वर्ड्स को जुड़ते हैं, वो हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में रहना होता है. तो टू लर्न इज इन्फिनिटिव हियर, लेकिन एंड के बाद हमें मिल रहा है टू हैव रिमेंबर्ड. तो इसको भी हमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच में लाना है, तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग टू रिमेंबर. We will not use to have remembered, we will just say to learn more quickly and to remember for a longer period of time. Next question. Last month we celebrated the wedding of our sister for whom we have been looking for suitable alliance for 3 years. अब जिन बहन के लिए ये लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, last month ही. So instead of using have been looking, present perfect continuous, we have to use it in past tense. So it should be past perfect continuous. So instead of saying we have been, it should be we had been looking.
सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, one of the fastest growing in the industry, is looking for a marketing manager to look up the marketing network of the company. तो यहाँ पे अगर आप अगेन सेंटेंस को बार बार पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि एरर है सी पार्ट में, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, सी हमारा आंसर होगा। व्हेन यू लुक अप समथिंग यू ट्राई टू फाइंड अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे, हियर द मार्केटिंग मैनेजर will not find out about the marketing network of the company but will take care of it, और उसके लिए हमें फ्रेजल वर्ब look up नहीं look after यूज करना है। तो यहाँ पे गलत फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, it should be to look after the marketing network, so C will be your correct answer. Next, there was very heavy rain last night and the rivers have overflown their banks, causing severe hardship to the people living by them. Again, if you read the sentence, you will be tempted to answer it as D, but D will not be an answer because there is definitely an error. और बहुत बच्चे, बहुत कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एरर को नजरअंदाज कर जाएंगे, और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी क्या है वो एरर, एंड यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज्ड। इट इज विद द यूज ऑफ द वर्ड ओवरफ्लोन। अब आप बोलोगे मैम ओवरफ्लोन तो ओवरफ्लो का पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म है। वेल, इफ यू से दैट यू आर रॉन्ग, ओवरफ्लोन इज नॉट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ओवरफ्लो, इट इज ओवरफ्लोड, not overflown, right? So यहाँ पे गलत वर्ड यूज हुआ है, it should be overflowed. So B will be your answer क्योंकि B पार्ट में ये एरर था। Next, the government warned the shopkeepers that if they persist in changing unfair prices, their licenses would be cancelled. Very tricky question. ऐसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस आपको देता है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे डी इज द आंसर। डी यहाँ पे बिल्कुल आंसर नहीं है, एंड दैट इज, अगर आप पूरा सेंटेंस को पढ़ोगे, इट इज इन पास्ट टेंस, वांट पास्ट टेंस, वुड बी कैंसल्ड पास्ट टेंस, पर यहाँ पे परसिस्ट वर्ब जो है प्रेजेंट में यूज हुआ है, विच इज रॉन्ग। सो वी शुड ऑल्सो मेक इट पास्ट। हाउ? इफ दे परसिस्टेड, ईडी ऐड करना पड़ेगा हमें, एंड मेक इट past, persisted in charging unfair prices. तो बी पार्ट में एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, द फ्लिकर ऑफ लाइट फ्रॉम द गैस लैम्प्स इंडिकेटेड दैट द नाइट वाज barely past. Again, you would think that the sentence is right, but it is wrong. The error is with part C of the sentence, so हमारा आंसर C हो जाएगा। कहाँ पे एरर है? We will not say was barely past. नाइट पास हुआ है, टाइम कट गया है। अगर हम टाइम की बात करते हैं और वो कट गया है ऐसा बोलते हैं, वी विल से इट हैज पास्ट। इस केस में हैड होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, राइट? तो हैड बेयरली पास्ट होगा। अगर आप यूज करते ओनली वॉज बेयरली पास्ट, इसका मतलब है किसी ने कुछ परीक्षा, कोई टेस्ट पास किया हो, लेकिन ये कट गया है समय, तो समय के लिए हम हैज या हैव पास्ट यूज करते हैं। अगर कोई टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, जो एग्जाम आपने क्रैक किया है, पास किया है, उसके लिए आप वॉज या इज पास्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज कमिटेड टू कीप मेंटेनिंग पीस एंड सॉल्विंग ऑल आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स विथ हर नेबर्स थ्रू डायलॉग। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा पार्ट ए, ऑप्शन ए। वी विल नॉट यूज कीप हियर क्योंकि मेंटेन करने का मतलब ही है कि वो बना के आप चले, टू गो ऑन विद दैट। सो अगर आप कीप और मेंटेनिंग एक साथ यूज करते हो, द वर्ड कीप विल बी सुपरफ्लुअस, यूजलेस टू यूज हियर, तो वी विल जस्ट यूज इट एज टू मेंटेनिंग पीस एंड सॉल्विंग ऑल आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। ओके, तो ए पार्ट में द वर्ड कीप वॉज यूज सुपरफ्लुअसली, सो वी हैव टू रिमूव दैट। नेक्स्ट, being the second Saturday of the month, he got up late and spent the whole day at home doing his share of the household chores. Again आप यहाँ पे देख सकते हो that same problem of the true subject is coming up. मैंने कहा था अगर आप verb plus ing से start करते हो कोई भी सेंटेंस, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसको हम ट्रू सब्जेक्ट के तौर से लेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं बीइंग द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ, इसके बाद ट्रू सब्जेक्ट आ रहा है ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सेकेंड सैटरडे था मंथ का, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो या कोई भी इंसान किसी मंथ का कोई दिन बन सकता है। तो हियर वी हैव टू यूज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू मेक इट और टू मीन इट अदरवाइज। तो क्या यूज कर सकते हैं? द टेम्पररी सब्जेक्ट इट, इट बीइंग द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ, ही गॉट अप लेट, क्योंकि सेकेंड सैटरडे था मंथ का इसीलिए उसने देर से उठा। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, as economic restructuring in Central and Eastern Europe progresses
An estimated 15 million people may be out of work by the end of the year. अगर आपको लग रहा है ये सेंटेंस पढ़ के that there is no error in the sentence, you are absolutely right. Because इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. So congratulations, you have answered right. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. Such of those who have not paid the fees, the circular says, will not be permitted to attend classes. Again, सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ में आ गया है कहाँ एरर है. And you are absolutely right. Error is in part A. हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है such of those. We can just say those who have not paid the fees, the circular says, will not be permitted to attend classes. Simple. So A part में error था. Such of is used superfluously. It is not needed to be used here. So A is our answer. So I hope आपको समझ आ गया है किस तरह के स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, कौन से रूल्स कैसे पढ़ना है और कैसे अप्लाई करना है ताकि आप स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस के आंसर सही से कर पाओ. ऐसे अगर आपको अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए सीडीएस एफकैट के लिए अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे लाइव क्लासेस को जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी हर रोज होती रहती है और हमने बहुत ही रिसेंटली जो है लाइव क्लासेस के बैचेस स्टार्ट किए हैं फॉर योर अपकमिंग एनडीए सीडीएस एंड एफकैट 1 2024 एग्जामिनेशंस. तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे साथ आज ही लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए. इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है. सो चेक आउट दीज कोर्सेज, बट फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप एंड व्हाइल यू आर गेटिंग एनरोल्ड टू एनी कोर्स यूज द कोड warrior10 ताकि आपको 10% का डिस्काउंट इन कोर्सेज में मिल सके. So that was it from my side. I hope that the session was quite useful and helpful for you, that you have got to know many questions from spotting errors and you've also got to know how to solve them by using what kind of grammar rules. So I'll see you next with something more helpful, interesting and more practice questions for your upcoming defense competitive exams related to the spotting of errors topic of English. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.